Hello students and welcome back to Aspire Academy. মই আহিছো আনমোল মেম লৈ পেলাই কেইটামান MCQ নহয় আজি আমি আনিছো শর্ট কোয়েশ্চনস ওকে সো অল দ্য স্টুডেন্টস অফ আসাম যিবিলাকে এবাৰ কি দিবা SSLC দিবা কি দিবা SSLC দিবা তোমালোকে সেবাৰ হ'ব পাৰা CBSE হ'ব পাৰা হয় নে নহয় 2023 আৰু আমাৰ মিশন কি হয় মিশন 90 ওকে সো বেছি পলম নকৰে আমি প্ৰথমত আমি ফাৰ্স্ট কোয়েশ্চনত গুছি যাও ইমান বেছি দিঘলীয়া নকৰো কথাটো সো দ্য ফাৰ্স্ট কোয়েশ্চন ইজ এবিলাক সব 2 মার্কস কোয়েশ্চন হয় দে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা and most probable question for metric for this 2023 batch SSLC the length of a rectangle is 3 times its breadth কি কৈছে length is 3 times its breadth so সোয়া L equal to 3b L মানে length হয় না নহয় আর b মানে breadth L equal to 3b এটাই কোশ্চেন আমি গম পালু হয় না নহয় তার পিছত কি কইছে if the area of the rectangle is 432 centimeter square so area formula কি হয় কোৱাচোন ক্লাস 10 পাইছে এরিয়া ফর্মুলা না জানলে কথা বেয়া হ'ব রেক্টেঙ্গল এরিয়া ফর্মুলা হল L into b আৰু এরিয়া দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 432 centimeter square 432 gives L এর জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰিম 3b লিখিব পাৰিম L equal to যেহেতু 3b হয় সো L এর জায়গাত আমি 3b লিখিলো into b হয় না নহয় সো 432 equal to 4b b equal to 432 divide by 4 বুঝি পাইছা নে 4 into 1 4 4 into 1 4 হয় নে সো এটু না যাব 0 4 5 20 8 4 32 4 into 8 32 হয় না নহয় 108 into 4 32 400 plus 13 414 বুঝি পাইছেন নাই সো আমি ব্রেথ গম পালো ব্রেথ কিমান আহিছে তোমালোকে মুখ নকলা কথাটো সোয়া ইয়াত কি হয় 3b স্কয়ার হয় হয় না নহয় 3b স্কয়ার সো কি হ'ব b স্কয়ার ইকুয়াল টু 432 ডিভাইড বাই 3 হয় না নহয় 3 into 1 3 3 into 1 3 3 into 4 12 3 into 4 12 so ইয়াত কি হ'ব কোৱাচোন b স্কয়ার ইকুয়াল টু 144 মানে কিমান 12 স্কয়ার so যেতিয়া পাওয়ার সেম হয় দেন বেস আর ইকুয়াল therefore b equal to 12 সেন্টিমিটার মেম সেন্টিমিটার কেনেকে হল কারণ এটা সেন্টিমিটার স্কয়ার আছে সো এখানে সেন্টিমিটার বুঝি পাইছানে সো L is 3 into b equal to 3 into 12 equal to 36 centimeter কম পাইছা so now if the area of the rectangle is this much find its perimeter perimeter formula কি হয় पता है कि नहीं पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो पेरीमीटर मतलब किसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर दैट मींस बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज 2 into L plus B है कि नहीं बोलो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों L L equal to 36 plus B equals to 12 2 into कितना होगा 48 6 plus 2 8 1 plus 3 4 तो कितना होगा 48 into 2 16 8 1 is 8 8 2s are 16 2 4s are 8 plus 1 96 therefore perimeter equal to 96 सेंटीमीटर लिखना मत भूलना अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा ठीक है ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नको देरी नको আমি হুনকালে পটকে নেক্সট क्वेश्चन গুছি যাও ঠিক আছে সোয়া if x varies directly as y varies directly as y मतलब क्या इसका मतलब ये है कि x जैसे जैसे बदलेगा y भी बदलेगा डायरेक्टली एक होता डायरेक्टली एक होता इनवर्सली डायरेक्टली मतलब x बढ़ना तो y भी बढ़ेगा x कमना तो y भी कमेगा इनवर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा दूसरा बढ़ेगा तो पहला कमेगा दैट इज इनवर्सली पर यहाँ पे क्या डायरेक्टली है सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो वहां पे हम लोग एक कांस्टेंट देना पड़ता है k into y अभी आप बोलोगे काय को मैम अगर इसका बात जानना है तो आप एस्पायर को सब्सक्राइब कीजिए आपको सब पता चल जाएगा वहां पे वीडियोस बनाया गया है क्यों है k into y देना पड़ता है ठीक है नाउ सी यहाँ पे क्या बोला है x equal to 6 and y equal to 30 x और y का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे x equal to 6 y equal to 30
तो k कितना आएगा, k की मान आई वो k इक्वल टू 6/30, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 5 30, देयरफॉर k इक्वल टू 1/5। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2। हम लोग को k नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, y चाहिए जब x 2 होता है। तो अभी सेकंड कंडीशन है x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमको नहीं पता, अब हम इसको निकालेंगे, ठीक है। हमको क्या पता है, x इक्वल टू के वाई हमको पता है, x का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू किमान आइছিলে 1/5 आइছিলে और y तो আমি না জানো। सो y इक्वल टू 5 एपिने গলে 2 into 5 equals to 10, therefore y equals to 10। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को यूनिट नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया नहीं है। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलते हैं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दिया है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन 1 दिया है, 2 दिया है। देखो इसमें इतना टेंशन मत लो, कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम बना दो। ये वेरिएबल है, इसके आगे का होता है कोफिशिएंट। तो सपोज x का कोफिशिएंट सेम बना दो, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है। क्या कर सकते हैं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या इसको 2 से डिवाइड करो। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो क्या आएगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0.2 इंटू 2 कितना होगा, 0.4 होगा। 0.4x प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.6y, 2 इंटू 3 6 इक्वल टू इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.6 होगा। ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 तो जैसा है वैसा ही लिखो, क्योंकि हम लोग को एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम बनाना था, बाकी जाए कहीं पे भी जाए 2.3। अब हम क्या करेंगे, सबको माइनस करेंगे, ये चला गया। हम क्यों कोफिशिएंट को सेम बनाते, ताकि एक वेरिएबल चला जाए। अब इसको क्या होगा, 0.1y इक्वल टू 0.3। समझ में आ रहा है। तो हमको क्या मिला, 0.1y इक्वल टू 0.3। तो y इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 0.1, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। y तो पता चल गया है कि नहीं। अभी हमको x चाहिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में y का वैल्यू डाल दो, तो क्या होगा, देखो 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 3 है, इक्वल टू 1.3। ये जो y है, y पे क्या डाला है, y का वैल्यू डाला है, तो ये आता है, बुझी पाए सर, 9 0.2x प्लस 3 इंटू 3 की मान होबो 9 होबो, कि एटे पॉइंट आसे, सो 9.9 होबो इक्वल टू 1.3 होबो, है ना। है 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, 0.2x इक्वल टू 13 माइनस 9 की मान होबो 4 होबो, कि एटे पॉइंट आसे, सो 0.4 होबो। तार पिछोर 0. कितेबा बोर्ड मते ढोका दिए, ठीक है। स्वा x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, 0.2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सबको पता है, बच्चा को पता है कि नहीं। तो इसको काट दो, 2 इंटू 1 2, 2 2 इंटू 2 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। x का कोई यूनिट है क्या, y का कोई यूनिट है, नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, now let's move to the next question. The product of two consecutive positive integer. Product में बोले तो multiply, product बोले तो multiply, multiply. 2 मतलब 2, consecutive positive integer, consecutive मतलब एक के बाद दूसरा, consecutive मतलब एक के बाद दूसरा। जैसे कि 2 के बाद 3, तो 2 और 3 consecutive हो गया। कंजुगेटिव ऑड बोला तो 2 के बाद 4 होगा, कंजुगेटिव इवन बोला तो 3 के बाद, कंजुगेटिव ऑड बोला तो 3 के बाद 5 होगा, कंजुगेटिव इवन बोला तो 2 के बाद 4 होगा। लेकिन उतना सब हम लोग को भी नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर एक इंटीजर अगर x होता है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, है कि नहीं। 2 एक है तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 कैसे आया, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आया। समझ में आ रहा है।
तो चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, हमें तो क्या गम है। चलो, लेट टू कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 306। समझ में आ रहा है। फाइंड द इंटीजर्स, तो हमको क्या पता करना है, x पता करना है। x पता होने के बाद x प्लस 1 तो पता हो ही जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, देखो यहां पे क्या होगा, इसको सॉल्व करो। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 306 होगा, इक्वल टू 0 होगा। आप लोगों ने सुना है स्प्लिटिंग मेथड, तो हम लोग उसको इधर अपनाएंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका, आप कोई भी अपनाओ। मैं तो भाई स्प्लिटिंग मेथड अपनाऊंगी, मेरे को वो इजी लगता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखना है प्लस समथिंग एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, अगर डिफरेंस साइन हो तो बीच में माइनस आएगा, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो डिफरेंस साइन हो तो माइनस आएगा, सेम साइन हो तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ये जो भी होगा उसको क्या निकालना है, 1 निकालना। इधर 1 है तो उसको 1 निकालना है कि नहीं। तो 306 आप देखो 18 इंटू 17 करो, 18 इंटू 17 करो। क्यों 18 इंटू 7, 8 7 56, लास्ट में 6 है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब आइडिया आएगा कि कौन सा जल्दी कैसे जल्दी किया जाए। 7 इंटू 8 56, 7 into 1 7, 8 9 10 11 12, 8 1 6 1 306। तो यहां पे क्या होगा, 18 माइनस 17 है कि नहीं, क्योंकि 18 इंटू 17 306 होगा और 18 माइनस 17 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बोलो मेरे बच्चों, x प्लस हम लोग कॉमन लेंगे, 18 माइनस 17x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। x माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अभी देखो, टैन टैन, देखो यहां पे क्या होगा, इधर x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, तब x इक्वल टू 17 होगा, और x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तब x इक्वल टू माइनस 18 होगा। लेकिन यहां पे क्या बोला है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहां पे बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव इंटीजर x इक्वल टू 17, और हम लोग के पास और एक क्या था, x प्लस 1 था, x प्लस 1, तो दैट मीन्स 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। देयरफॉर 17 and 18 आर रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट चलते हैं, फटाफट चलो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे एक एपी का दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, तो ये कौन सा टर्म है वो पता करना है। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हम लोग को पता है। यहाँ पे ए एन क्या है, लास्ट टर्म जो कि 205 है, ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना है नहीं पता मैम, प्लस डी कितना है, देखो डी मतलब 13 माइनस 7 कितना होगा 6। अभी देखो 205, 7 इस तरफ आएगा तो माइनस 7 होगा, इक्वल्स टू 6n माइनस 6n माइनस 6। ठीक है, तो 205 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल टू 6n। 20 कितना होगा, ये 4 होगा,
204, क्योंकि -7 + 6 -1 होगा, 205 - 1 -4 = 6n। इससे क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, 204 / 6 है कि नहीं, 6 × 1 6, 6 × 3 18, 6 4 24, therefore n = 34। ठीक है ना इजी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सी बोर्ड मत छुआ। A line intersects the side AB and AC of a triangle ABCD at D and E respectively, and and is parallel to BC. Prove that AD / AB = AE / AC। दिखने में आपको डर लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैथ्स एक बीमारी है तो आई एम द डॉक्टर, चिंता मत करो, सब सॉल्व हो जाएगा। ओके नाउ सी, यहां पे क्या बोला है, अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABCD। एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है मेरे दोस्तों, ट्रायंगल दिया है। नाम क्या है ट्रायंगल का, ABCD, ABC। क्या बोला, अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC, AB और AC को इंटरसेक्ट करता है एक लाइन एट D एंड E। तो ये D होगा, ये E होगा, समझ में आ रहा है। अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB, ये AB को इंटरसेक्ट करता है एंड AC को ऑफ अ ट्रायंगल ABCD एट D एंड E, तो ये D एंड E रेस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू BC। तो ये जो लाइन है ये BC से पैरेलल है। प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, मतलब AD / AB = AE / AC। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इन गिवन क्या गिवन दिया है, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, DE is parallel to BC given। okay, to prove AD by AB is equals to AE by AC। प्रूफ अभी देखो, एंगल A इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल, देखो ये AD, मैं ट्रायंगल को सेपरेट कर देती हूं, ADE, ठीक है, और दूसरा है ABC। देखो दोनों में क्या है, बताओ, दोनों में एंगल A इक्वल है, एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल BAC। देखो ये ट्रायंगल इक्वल है कि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल्स, फर्स्ट रीजन। सेकंड देखो, एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ABC। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और ये दो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, अभी देखो तीसरा, एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल ACB। सेम रीजन, देखो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, सेम रीजन। इसका मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इससे क्या होता है, देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सिमिलर हो गया, दो ट्रायंगल का सारा एंगल इक्वल होने से सिमिलर होता है, सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर AD by AB is equal to AE by AC। Sides are proportional to similar triangles of similar triangle। समझ में आ रहा है? ओके,
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चलो फटाफट, टाइम नहीं है अपन के पास, फटाफट। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट दिस। देखो बात क्या है ना कि जब आप लोग को ये क्वेश्चन मिला था बुक में तब आपने बहुत सारा फॉर्मूला तब तक आपको नहीं मिला था, तो आप लोग ने क्या किया, इसमें ये h ये b है ये p है, h निकाला फिर ये सॉल्व किया। लेकिन हम दूसरा मेथड से करेंगे क्योंकि हम लोग के पास अभी तक हम लोग को फॉर्मूला पता चल चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आप लोग मुझे बताओ बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত, আমি লিখিব পাৰিম 1 স্কয়ার মাইনাস sin স্কয়ার থিটা ডিভাইড বাই 1 স্কয়ার মাইনাস cos স্কয়ার থিটা। 1 স্কয়ার টু 1 এ হবে 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা ডিভাইড বাই 1 মাইনাস cos স্কয়ার থিটা। 1 minus sin square theta is equal to cos square theta और 1 minus cos square equal to sin square theta। ओके, cos by sin माने cot square theta, যেহেতু cot আমি জানো 7/8 ইয়ার স্কয়ার হবো 7 7 49 8 8 64। বুঝি পাইছা? ইমান ইজি। Now let's move to the last question of today's live class, that is if sin x plus y equal to 1 cos x minus y equal to 3√3/2 and sin or দিয়া আছে cos or বি দিয়া আছে x y কে ডাঙৰ হয় আৰু x আৰু y প্লাস কৰিলে 0 কে ডাঙৰ 90 কে সৰু, সো কি হ'ব, সৰু ওপৰ ইকুৱেল ওপৰ দেন ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ x and y। সোয়া ইয়াত আমি কি দিয়া আছে, সোয়া sin x plus y equals to 1। সো ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰিম কোৱাচোন, x plus y 1 এর জায়গাত আমি sin 90 লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, পাৰিম। 1 মানে sin 90, sin 90 মানে 1 হয় ন, যেহেতু sin sin দিয়া আছে therefore x plus y equal to 90 ইকুয়েশন 1। অলসো কি দিয়া আছে, কি দিয়া আছে, cos x minus y equals to √3/2। cos কিমান হয় কোৱাচোন, √3/2 মানে cos 30, sin 60 √3/2 and cos 30 √3/2 মানে আমি cos 30 লিখিব পাৰিম। therefore x minus y equal to 30। तो x plus y equal to 90, x minus y equal to 30। আমি প্লাস করিম ইকুয়েশন, add equation 1 and 2 goal 2x equal to 120, x equal to 60 degree। so y কিমান হ'ব, x plus y equal to 90 কৈছে, 60 plus y equal to 90 therefore y equal to 30 degree। বুঝি পাইছা? okay, so this was for all for today। আজি লাইভ ক্লাসত তোমালোকে যি বুজি পাইছা ভেরি গুড। যদি একো কিছুমান বস্তু যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ কমেন্ট কৰা, and if you have any doubt please send your question to us, we will solve your problem in live classes। and this is basically আজি যিমান question solve কৰিছো, these are the most probable question for next exam, for coming exam HSLC 2023 for both CBS and SEBA। so এনেকুৱা লাইভ আমি দি থাকিম for science math social every day। so কালি আমি আহিম, তেতিয়ালৈকে study hard and stay tuned to Aspire Academy।